Patanjali Parivar on 31st July in the divine presence of Param Pujya Swamiji Maharaj, Param Siddhe Guruji, Param Pujya Siddhe Acharya Sri Ji. On 29th August, i.e. on the day of Raksha Bandhan, our new students had their Upnayan Sanskar also. And it is our regular practice. The children were taken on an excursion trip to Crystal World in two groups, one on 25th, 2015 and the other on 27th. They were also taken to an educational trip to Army Cantonment, Roorkee. It was an excellent experience to the children and very educative also. For this we express our heartfelt thanks to the commanding officer, Colonel Sagar Mohanty and Captain Gaurav. They had to come but unfortunately could not be present today, and the other army of staff also, to contribute to the mission of Param Pujya Swamiji and to respond to the appeal of our Honorable Prime Minister. Many of our children organized yoga camp on the occasion of World Yoga Day in their respective areas. Sir, when they went on summer vacation, they hold this yoga camps in their villages, in their cities. It's a matter of great pleasure for us and honor. For time to time, different renowned personalities visit the school and enlighten the students, sharing their expertise and experience in different fields. Among the renowned personalities who visited the school in last 1 year, some are Sri Mohanji Bhagwat, Sarsang Chalak, Rashtriya Swayamsevak Sangh, Sri Pawan Kumar Chamling, Honorable Chief Minister of Sikkim, Sri K.K. Pal, Honorable Governor of Uttarakhand, Sri Susri Ira Singhal, who topped IS this year, Sri Sushil Kumar, Olympic gold medalist in wrestling, Justice S.S. Kothari, Lokayukt Rajasthan, Mrs. Anjana Bhagwat, wife of Sri S.K. Bhagwat, DG Vigilance, Uttarakhand, Sri S.K. Agrawal, District and Session Judge, Chandigarh, and many more. Our students are also fortunate enough to get regular high-level philosophical classes by Param Pujya Guruji, Guru Pradyumnanji. We also started classes for foundation course for medical and engineering. Although we are having class 8, the highest class, but we started this so that the student can prepare in advance. To talk about yoga, if Maharishi Patanjali's name is remembered for giving the classic literature, Yoga Darshan, to the human society, I think Param Pujya Swamiji Maharaj, his name will be written in the golden letters in the pages of history for making yoga as a revolution, yoga as a way of life, expressing our heartfelt gratitude to our Honorable Prime Minister for taking this moment to the international platform of UNO, and also to UNO for taking this moment ahead by declaring 21st June as World Yoga Day. We at Acharya Kulam take this opportunity to celebrate the third annual function on the theme of Yog Marg or Yog the Path. It's our humble endeavor to explain through small entertaining program what Maharishi Patanjali wanted to mean by yoga in his famous Yoga Darshan. We would feel greatly honored if we could somehow take the message to the common man of the society. Not taking much of your valuable time, sir, I conclude the report of this budding institution with the following lines. Oh, the Almighty Power, may our children be the savior of this beautiful earth, and that is the dire need of the hour. मंजिल अभी दूर है, रास्ता जटिल है, कंधा मिलाकर चलें तो मुश्किल कुछ नहीं है, साथ मिलकर हम जो कदम बढ़ाएंगे तो देखते ही देखते सब रास्ते खुल जाएंगे. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. Thank you, sir. The vision of third annual day, Yoga the Path, has once again given the students a wee idea of refinement
it automatically brings. It's a day of absolute adulteration, portal of talent and vigor, the end point of one's wandering. How different this day is, dear audience. You will surely discover yourself as the colors of cultural fest of third annual function unfold. I think everyone is eager to sing into the depth of music, song, lights and joy. Well, here you are. Oh, good afternoon to all. I, Tejaswini, a student of class 8, would like to bring the theme of the third annual function into limelight. First of all, I bow my head into the lotus feet of all. Today, I also welcome and greet you all to the third annual function of Acharya Kulam for the grace of your esteemed presence and honor. Yoga has been playing an important and domineering role in our art of living, which we are learning in the sanctimonious ambience of Acharya Kulam, in the close association with the Gurus. And thus, the most authentic book of Yoga is Yoga Darshan. Our annual function is completely theme-based. And this year, the theme of our annual function is Yoga Marg, Yoga the Path, based on Maharshi Patanjali's Yoga Darshan. Though Yoga Darshan is very tough subject, but we, the students of Acharya Kulam, have made earnest endeavors to simplify and present it through skits, mimes, various dances, acts, acrobatic postures of yoga, etc. We do expect that the synchronization of different vibrant programs will surely mesmerize you, being overwhelmed, impressed and inspired by the philosophy of yoga to be portrayed before you. You will assimilate yoga in your daily course of life. So let's pay a visit to the ashram of Rajguruji. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। प्यारे शिष्यों, परमेश्वर क्या है? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदिमूल परमेश्वर है। अर्थात जितनी भी विद्याएं संसार में हैं, चाहे वह भौतिक हों, चाहे आध्यात्मिक, चाहे विज्ञान से युक्त हों, उन सब का कर्ता, धर्ता, हर्ता ईश्वर है। अब प्रश्न उठता है, इस ईश्वर को कैसे पाएं? युञ्जानः प्रथमं मनः तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याभरत। अर्थात योग को करने वाले मनुष्य ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने मन को पहले ईश्वर में युक्त करते हैं, तब परमेश्वर उनकी बुद्धि को अपनी कृपा से अपने में युक्त कर लेता है। फिर वे परमेश्वर के प्रकाश को धारण करते हैं। पृथ्वी पर योगी का यही लक्षण प्रसिद्ध है। अतः आप सबको भी अपने जीवन में योग को उतारकर ईश्वर की ओर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम।
राजन आपसे मिलने हेतु पधारे हैं। सम्मान पूर्वक उन्हें अतिथि गृह में बैठाओ। प्रणाम गुरुवर। यशस्वी भव राजन, बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है? समाज की बहुत बुरी दशा है गुरुवर। समझ ही नहीं आता क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। सारी की सारी प्रजा पथभ्रष्ट हो चुकी है। आप स्वयं ही देख लीजिए, व्यापारी क्या कर रहे हैं। देखियो किसी लागू सु गणित सूत्री लागे से। आराम आराम ते दबा भाई। जी बाबूजी। रुक जा, इब्बे बताऊं हूं तेने। पहले पकड़ के तो दिखा गोलगप्पे। हाय हाय, मेरे तो करम ही फूट गए जो हरिश्चंद्र मेरे पल्ले पड़ गया। अरे क्या हो गया भगवान, इतनी लाल पीली क्यों हो रही से? शर्मा जी की घराली ने देख, रोज नवे नवे सूट पहरे, बैरन जेवराने रोज घड़वावे। इतना नंबर 2 का पिस्सा बरसन लाग रहा, और तन्ने आज से मुझे कुछ कोन्या ला के दिया। तू भी बैरन मानने कोन्या बेईमाना करवा के मानेगी? हाँ, मैं कोनी मानू। मन्ने भी औरा की तरह सुथरे सुथरे सूट और जेवर चाहिए। अरे सुन सके, अरे सुनो, यू भी माने कोन्या बेईमाना करवा के मानेगी। मेरा चूंदड़ मंगा दे
मालिक यो डालडे का पिप्पा कहीं मिन्ना तेनु है धरे के करू का बगा दू के। अरे तेरे बाप कमा लेके हैं, ये तो देसी घी में मिलेगा। अरे दूना फायदा देगा दूना। देसी घी में के मतलब मिलावट? और दूध का की करूं, दूध तेज बस 10 किलो आया है। अरे के फर्क पड़ रहा, ले पकड़ 4 किलो पाउडर, 1 किलो यूरिया, आधा किलो कास्टिक सोडा। अरे 2 ट्यूब मिला दे 20 किलो पानी में, हो गया कोटा पूरा, बन गया तेरा दूध फर्स्ट क्लास। ओए तेरे हाथ में मेहंदी लग रही है क्या? हैं जल्दी जल्दी कर। अरे तू भी जल्दी कर। आजो भाई, कौन है थारे में तो मालिक? जी 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 साहब, मैं सू। आओ साहब आओ। राम राम साहब, राम राम। अच्छा बेटे, यो के गोरख धंधा चला रखा है, पकड़ा गया रंगे हाथों। अब बढ़ेगी पाउडर वाला दूध थाने में चल के। अरे साहब कैसी बात कर रहे हो? इस दूध में तो इतनी पौष्टिकता से क्यों आपने भी खुश रखेगा और हमने भी। वाह भाई वाह, ई दूध में तो घनी पौष्टिकता से घनी। सच्ची में। अरे अरे मालिक, यो तुम कती ठीक ना कर रहे, कती ठीक ना कर रहे। इस मिलावटी दूध और घी तय कैंसर, दिल का दौरा, लीवर फेल जैसी सैकड़ों बीमारियां लग जाए। ओहो सुनो भाई सुनो, ये भी डॉक्टर हमें समझावेगा हैं? मर जा परे ने। राजन, आप उचित ही कह रहे हैं, ये तो बहुत ही खराब स्थिति है। यह तो कुछ भी नहीं गुरुवर, लोगों के बीच धर्म के नाम पर बहुत गहरी गहरी खाइयां बन चुकी हैं। आप स्वयं ही देख लीजिए।
राजन, धर्म को लेकर तो ये सब भ्रमित हैं, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि भावी पीढ़ी शिक्षित होकर धर्म की सही परिभाषा लोगों को समझाएगी। भावी पीढ़ी और शिक्षित, आप उसे भी देख लीजिए गुरुवर। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, children. Sit down. Today we will discuss about photosynthesis. Who has done it? I said, who has done it? Stand up, Prince. Why have you done so? What have I done? Why are you catching my ear? Oh, is this? Come to principal's office. No, I won't. Leave it, sir. Leave it, leave it. Let me show you. Prince, what is this? Without washing your hands and feet, you are sitting with laptop and TV. Oh, the same irritating dialogue again and again. I am fed up, Mom. Is this? In school also you have misbehaved with your teacher. Your principal has complained against you. Let the principal complain. I don't bother. I have done whatever I thought the best. Will you not take care of the prestige of a father? Why should I? How are you taking care of my prestige? My friends are coming to school on new bikes costing 1 lakh, and I am going by that backdated one. You are growing up, Prince. Think of your father's income. I don't want to think of anything. Either he stop here later, or else I am going out of home. Prince, Prince. वास्तव में ये तो बहुत ही चिंतनीय स्थिति है। अगर हमारी भावी पीढ़ी की सोच इस प्रकार की है तो भविष्य में हम इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? भावी पीढ़ी छोड़िए गुरुवर, वर्तमान में वातावरण इतना प्रदूषित हो चुका है कि चारों तरफ धुएं और शोर में तो जीना ही मुश्किल हो गया है। इस स्थिति को भी देख लीजिए गुरुवर।
तव तीरे वीरमात्रशनोऽहं भगवती तव तीरे वीरमात्रशनोऽहं विगतविषयतृष्णा कृष्णमाराधयामि विगतविषयतृष्णा कृष्णमाराधयामि सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे हरणतरतरङ्गे देवी गङ्गे प्रसीद नमामि गङ्गे नमामि गङ्गे नमामि गङ्गे नमामि गङ्गे हर हर गङ्गे हर हर गङ्गे हर हर गङ्गे हर हर गङ्गे नमामि गङ्गे तव पादपङ्कजं सुरासुरैव वन्दितं देव्यरूपम् ओहो, इतनी भयावह स्थिति। हाँ गुरुवर, देश में महिलाओं की स्थिति तो और भी दयनीय है। कन्या भ्रूण हत्या, अशिक्षा, दहेज आदि बुराइयों से महिलाएं कैसे पीड़ित हैं, आप उस स्थिति को भी देख लीजिए गुरुवर। देखिए समधी जी, लड़की तो आपकी बहुत सुशील है और हमें बहुत पसंद भी है, पर लेन देन में हमारा बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। आपकी लड़की हमारा लड़का, इसमें सौदेबाजी वाली क्या बात है? ये तो आपकी महानता है जी, वरना आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। सही पकड़े हैं समधी जी, हम इस बुढ़ापे में पैसे लेकर क्या करेंगे? हमने तो जीवन भर की कमाई बेटे को पढ़ाने लिखवाने में लगा दी, अब उसकी दुकान खुलवाने में 14-15 लाख तो लग ही जाएंगे। वैसे भी भाई साहब, अब आप जैसे रिश्तेदार मिल गए तो हमें क्या चिंता। मतलब नहीं समझे बहन जी। इसमें मतलब समझने जैसी क्या बात है बहन जी, हमसे जितनी मदद होगी हम करेंगे, बाकी आप लोग तो हैं ही। चलो समधी जी, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है, जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे ही। और दुकान पर तो कोई साइकिल से जाएगा नहीं, और जो मोटरसाइकिल आप देंगे उस पर आपकी बेटी और दामाद ही तो घूमेंगे, हमें क्या करना है? चिंता मत करो, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सोचो तो। ठीक है जी।
रीक रीक धा सारा दिन पड़ी पड़ी खाट तोड़ती रहती है। चल जा, खाना लेके आ मेरे लिए। खाना? घर में तो खाने का एक दाना भी नहीं है। 10 दिन से मुझे तेज बुखार है। 3 दिन से तो कुछ खाया भी नहीं है। दवा तक के लिए तो पैसे है नहीं, और तुम रोज शराब पी कर आ जाते हो। बहुत ज्यादा जुबान चल रही है तेरी। बहुत रईस बाप की बेटी है ना तू। तेरे बाप ने 15 लाख की जगह 5 लाख 5 लाख में मेरे पल्ले बांध दी। आज तुझे बताऊं। हे ईश्वर, इन लोगों को सद्बुद्धि दो। मुझसे तो समाज की ये दशा देखी नहीं जाती। ईश्वर? गुरुवर, इन लोगों को तो ईश्वर का कुछ भी ज्ञान ही नहीं है, बल्कि ये सब तो अंधविश्वासों की जंजीरों में जकड़े हुए लोग हैं। आप स्वयं ही देख लीजिए गुरुवर, क्या हो रहा है। ओए खटका, ले खैनी बना। जी गुरु। गुरु गुरु, एक मोटा मुर्गा आ गया। काटने की तैयारी करो ताकि आज रात का दारू का इंतजाम हो सके। ठीक है फटका, तू 2 मिनट बाद उसे अंदर भेज, मैं तैयार होता हूँ। और खटका, तू अपनी नौटंकी शुरू कर। दे गुरु। बाबाजी मुझे बचा लो, बाबाजी मुझे बचा लो। क्या बात है बच्चे, बहुत परेशान लग रहे हो। चिंता मत करो, मैं हूं ना। तुम मेरे शरण में आ जाओ। मेरे पास जो आता है वो खाली हाथ ही, अरे रे रे रे, वो खाली हाथ नहीं जाता है बच्चा। जय हो बाबा दी, जय हो बाबा दी, जय हो बाबा दी। आप दी तलन में आते में सारे दुख दूल हो दे। ललते दी नौतली लदई, ललती दी दादी हो दई।
पत्नी तिताल बिमालियां तूलो दई बाबदी लोदत हद्दाल कत्तदाबा बाबदी बाबा दीदी दे हो बाबा दीदी दे हो बाबा दी आप दी दिल पाओ तो मतान भी बंदा है। हाँ बच्चा, जैसा मैं देख रहा हूँ कृपा रुकी हुई है। तुम हरी चटनी के साथ समोसे खाओ और पत्नी को गोलगप्पे खिलाओ और प्रसाद में भी गोलगप्पे बांटो। रुका हुआ काम भी पूरा हो जाएगा। देता आपदा आदेश बाबा दीदी दे हो बाबा दीदी दे हो। मुझ पर भी अपनी कृपा करो बाबूजी, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे बुरे बुरे सपने आते हैं, लगता है जैसे कोई मुझे मार रहा है। मैं जीना चाहता हूँ बाबूजी, मैं जीना चाहता हूँ। मुझे बचा लो बाबूजी, मुझे बचा लो। अरे तुम पर तो बहुत बड़े प्रेतात्मा की काली छाया है, काली छाया है, काली छाया है, काली छाया है, काली छाया है। हे राजन, वास्तव में राज्य के लोगों की दशा तो बहुत ही दयनीय है। गुरुवर, आप ही इन समस्याओं का कुछ समाधान सुझाइए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या किया जाए? ठीक है राजन, समस्या जटिल है, अतः मैं चिंतन करके कुछ समय पश्चात आपसे बात करूंगा। हे ईश्वर, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हे ईश्वर, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हे ईश्वर, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। राजगुरु। प्रणाम ऋषिवर, आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दें। प्रणाम, मैं पतंजलि हूँ। महर्षि पतंजलि, आप? अहो भाग्य। ऋषिवर, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? हे महर्षि, आपको तो ज्ञात ही है कि राज्य के लोगों की मानसिक स्थिति क्या है, पर मुझे कोई समाधान नहीं सूझ रहा। ऋषिवर, समाधान से पहले आपको इसके मूल कारण जानने होंगे। आओ, इनके मूल कारण जानें।